Hello everyone. Today we are going to start with yet another subject of law, which is Code of Civil Procedure, CPC 1908. Now this video shall very first take the topic of what is a decree. Decree क्या होती है? What are the essential elements of decree? And how to distinguish between the preliminary and final decree. DECREE. Now section 2 subsection 2 of the code defines decree as follows. Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the courts expressing it conclusively, determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include a. any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, and b. any order for dismissal of default. Now this was the definition given in section 2 subsection 2 of the code. Now let's try and understand precisely what are the various essential elements of this definition. The very first thing that we have to understand is decree means the formal expression. What is formal expression? Formal expression here means that in order to constitute a decision of the court to be a decree, there must be a formal expression of an adjudication, meaning a formal expression of judicial determination of the matter in dispute. Thus, if there is no judicial determination of any matter in dispute and it is not passed by a court, there can be no decree. बहुत ही साधारण शब्दों में अगर आपको समझना है तो ये समझ लीजिए कि फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रारूप, यानी एक फिक्स्ड फॉर्मेट में डिग्री हमेशा लिखी या बनाई जाती है. सेकेंड वर्ड विच हैज़ टू बी अंडरस्टूड इज एजुकेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन? इट मीन्स the judicial decision of the court on the point of controversy. एजुकेशन वो डिसीजन होता है कोर्ट का जिस भी कंट्रोवर्सी के लिए वो डिक्री डील कर रही है उस पर. नेक्स्ट, यू हैव टू पे अटेंशन टू द वर्ड conclusively. The courts expressing it conclusively means clear cut decision of the court. कोई भी उसमें ambiguity नहीं होनी चाहिए. Then it is important to have a suit filed before the court. Of course there can be no decree unless there was a suit. Suit के बिना डिक्री हो नहीं सकती, इसलिए suit का होना एसेंशियल है. सूट का फाइल करना कोर्ट के सामने ज़रूरी है ताकि डिक्री दी जा सके. सूट दो नॉट डिफाइंड इन एनी कोड मे बी टेकन टू मीन सिविल और रेवेन्यू और अदर प्रोसीडिंग्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और एप्लीकेशन विच मे अमाउंट टू प्लेंट. तो सूट कहीं पे भी डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन ये प्रोसीडिंग्स आप समझ सकते हो regarding any plaint presentation या फिर any application which will be treated as equivalent, वो plaint जैसा ही उसको treat किया जाए.
Suit generally means proceeding instituted by presentation of a plaint, but proceedings commencing with presentation of application are also suit, and decree passed on such suit is statutory decree, and although actually they are not decree under section 2 subsection 2 of the code, the examples of such statutory decree are decrees passed under the Hindu Marriage Act 1955 और द लैंड एक्विजिशन एक्ट एक्सेट्रा। तो जो एप्लीकेशन वाले होते हैं वो भी डिक्री डायरेक्टली सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत तो नहीं फॉल करते, लेकिन स्टैच्यूटरी डिक्री के अंदर ये भी आते हैं। एग्जाम्पल्स हिंदू मैरिज एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट एक्सेट्रा। The third very important point is the education must have been determined the rights of the parties with regards to all or any of the matters in controversy in the suit. एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पार्टीज़ के राइट बिल्कुल क्लियर हो, डिटरमाइंड हो विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर विच इज़ इन कंट्रोवर्सी। एक्सप्रेशन राइट्स ऑफ द पार्टीज़ जो लिखा गया है उसका मतलब होता है सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ द पार्टीज़ एंड नॉट मियरली प्रोसीजरल राइट्स। द टर्म पार्टीज़ इटसेल्फ मीन्स द पार्टीज़ टू द suit. Fourth and very important thing is conclusive education. I have already told you conclusive means a very determined one. This element connotes that such education must be complete and final as regards the court which passed it. Decree may conclusively determine the rights of the party although it does not completely dispose of the suit. तो पार्टीज़ के जो राइट्स है वो तो क्लियर होने ही चाहिए डिक्री में, भले ही वो सूट पूरा का पूरा डिस्पोज ऑफ अभी ना हुआ हो। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि प्रिलिमिनरी डिक्री आप किसको कहेंगे। व्हेन एन एजुकेशन डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन सूट बट डज नॉट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, इट विल बी अ प्रिलिमिनरी डिक्री। अगर पूरा का पूरा केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, पूरा डिस्पोज नहीं हुआ है, तो तब जो कोर्ट डिक्री पास करेगा उसको हम कहेंगे प्रिलिमिनरी डिक्री। जबकि फाइनल डिक्री क्या होती है? अ डिक्री विच में बिकम फाइनल, इट कैन बी डन इन 2 ways. First, when the time for appeal has expired without any appeal being filed or on the matter has been decided by a decree of the highest court. तो या तो जो टाइम अपील करने का है वो पास हो जाए, एक्सपायर हो जाए और अपील ना की जा सके, तो जो भी डिक्री होती है वो फाइनल हो जाती है, या फिर मैटर डिसाइड किया जा चुका है बाय द एपेक्स कोर्ट और द हाईएस्ट कोर्ट। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, व्हेन द डिक्री सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट पासिंग इट कम्प्लीटली डिस्पोजेस द सूट, कि जो कोर्ट उसकी हेयरिंग कर रहा था वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देता है अगर सूट को, तो भी जो डिक्री आएगी सामने दैट विल बी अ फाइनल डिक्री। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन preliminary and the final decree. A suit is completely disposed of when there is nothing further remained to be decided in it. सूट को हम कब मानेंगे कि पूरा डिस्पोज हो चुका, जबकि उसमें कुछ भी डिसाइड करने लायक अब बाकी ना हो। A decree in which a condition is attached, upon the fulfillment of which the decree holder is to enjoy the fruits of the decree, does not because of that become a preliminary decree. It is nevertheless a final decree. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई डिक्री ऐसी है जिसमें कोई कंडीशन अटैच कर दी गई है जिसको कि आप फुलफ़िल करेंगे तभी आप उस डिक्री का जो रिज़ल्ट है, आउटपुट है, फ्रूट है, उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो केवल इस वजह से कि उस पर कोई कंडीशन लगी हुई है वो डिक्री प्रिलिमिनरी नहीं काउंट होगी, वो हर हाल में फाइनल डिक्री ही रहेगी। So students, this was a short lecture regarding what is a decree and what is the difference between preliminary and final decree. एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आप सुन लीजिए,
आपको हेल्प करेगा। मान लीजिए मनोज फाइल्स अ सूट फॉर प्रीएम्पशन अगेंस्ट विनोद। तो मनोज की जो डिक्री ए डिक्री पास्ड इज पास्ड इन मनोज फेवर। मान लीजिए कोई डिक्री है जो मनोज के फेवर में ही पास की गई है, बट विद द कंडीशन that unless the purchase price is deposited within 2 months of the decree, the suit shall stand dismissed। तो अगर मनोज 2 महीने के अंदर अंदर डिक्री पास होने के बाद वो पैसे जमा नहीं करता है परचेज प्राइस को, तो वो पूरा का पूरा डिक्री डिसमिस हो जाएगा। Thus the decree is a final one as nothing is left for the court to determine। तो इस केस में जो मनोज और विनोद के बीच का डिस्प्यूट है उसके ऊपर जो डिग्री पास हुई है वो फाइनल ही मानी जाएगी, क्योंकि और कुछ डिसाइड होना बाकी नहीं है। देयरफॉर ऑर्डिनरली देयर विल बी ओनली वन फाइनल डिग्री इन द सूट, बट सर्कमस्टांसेस आर नॉट इनकंसीवेबल विच रिक्वायर द पासिंग ऑफ मोर देन वन फाइनल डिग्री इन द सेम सूट। तो फाइनल डिग्री आप तभी मानेंगे जबकि और कुछ भी उसमें डिसाइड करने लायक नहीं होता है। और अगर आप सोचें कि करेक्शन हो सकता है क्या डिक्री में, तो करेक्शन ऑफ द डिक्री इज़ परमिसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ अ क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक। केवल अगर बाबूजी लोग गलत कर देते हैं या गिनने और जोड़ने में घटाने में कुछ गड़बड़ी हो, तभी उसका करेक्शन हो सकता है ऑन द पार्ट, वो भी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ कोर्स, अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, गलती से जो हो गया हो। डिक्री कैनॉट बी करेक्टेड फॉर मिस्टेक कमिटेड बाय लिटिगेटिंग पार्टी। तो कोई भी अगर लिटिगेटिंग पार्टी की गलती है तो फिर उस डिक्री में कोई भी करेक्शन होने की कोई संभावना नहीं होती है। कॉम्प्रोमाइज डिक्री की जहाँ तक बात है, तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री इज ऑल्सो अ डिक्री एडजुकेटिंग द राइट्स ऑफ द पार्टी। So student, this was it, the very first topic in CPC 1908. So this will be of help to you in your studies. Keep studying. Bye bye for now.